جہاں جس آدمی کو جس طریقے سے سہولیت ہوتی ہے اسی طرح سے اس کی جو ہے سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں بغیر ایک نئے پیسے کی انٹرسٹ کے کسی بھی ٹیبل پہ. یہ کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں ٹاپ آف دا گورنمنٹ سے لے کر کے نیچے تک. یہ بالکل بات جو ہے نہ ماننے والی ہے اور نہ میں آپ سے اس سے سہمت ہوں. اس میں ہے ہی نہیں کسی بھی جگہ کوئی. ساری چیزیں اوپن ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہیں، IMS پورٹل پہ اویلیبل ہیں، ڈیش بورڈ اویلیبل ہے. آپ کو امپاور کیا گیا ہے کہ بھئی آپ کام کریں گے. آپ نے کہا جناب مجھے پیمنٹ چاہیے، 15 دن میں پیمنٹ کرنا میری ذمہ واری ہے. اگر میں نہیں کرتا ہوں تو مجھے پوچھا جائے گا. وہ 15 دن کا گیپ جو ہے ڈسٹریبیوٹڈ ہے. میرے ٹیبل کے لیے 2 دن ہے، میں تیسرا دن لگاتا ہوں تو مجھے پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے. اور آپ یہاں پہ کنٹریکٹرز ایسوسیشنز ہیں، ہندوارہ کی بھی ہیں، کپوارہ کی بھی ہیں. یہاں میں لوگوں کو جانتا نہیں ہوں، میرے پاس ایڈیشنل چارج ہے. کسی سے آپ پوچھئے کہ یہاں پہ ٹیبل پہ اگر میں یہاں نہیں آ پا رہا ہوتا ہوں، میں پیپرز جو ہے ہندوارہ منگا لیتا ہوں تاکہ کنٹریکٹرز کی بلز کسی وجہ سے وہ ڈیلے نہ ہو. اگر کسی ٹیبل پہ کوئی کاغذ ڈیلے رہتا ہے وہ سوچتا ہے شاید کچھ کسی وجہ سے، میں پیپرز وہاں پہ منگا لیتا ہوں، اسی دن اس کا ڈسپوزل ہو جاتا ہے. آج بھی آپ کے آنے سے پہلے میں نے سارا ڈسپوزل کر دیا ہوا ہے. کی بات جو آئی ہے، یہاں وٹلب کی اسکیم میں آپ جنریٹر سے بھی پانی اپلوڈ کر رہے ہیں، اور یہاں مہاراج پورہ ہے، بجلی نہ ہو تو یہاں پہ جنریٹر کی بھی سویدھا ہے. مگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنریٹر لگے ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے چلائے نہیں جاتے، یا بیٹری بیک اپ نہیں ہوتا ہے، یا جنریٹر نہیں وہاں پہ چلائے جاتے ہیں، ان کا فیول نہیں ہوتا ہے. یہی حال مہاراج پورہ کا ہے اور وٹلب کا ہے. اس وجہ سے بھی پانی کا بریک اپ آ رہا ہے. سوپور ایک ایسا ٹاؤن ہے جہاں پہ کافی زیادہ میسیو ایکسپینشن ہے. ایکسپینشن بھی جو ہے وہ پلانڈ طریقے سے نہیں ہوتی ہے. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو اٹینڈنس ہے اپنے امپلائیز کی وہ GPS سے ہونی چاہیے؟ ایک اپلیکیشن ہے GPS، گراؤنڈ پوزیشننگ سروس اپلیکیشن ہے، جیسے کہ ٹیچرز کی ہو رہی ہے، اور اس طرح سے یہ پتہ چلے کہ اس کی جو ڈیوٹی ہے ایک امپلائی کی کہاں پہ ہے اور اس کی پوزیشن لوکیشن کہاں ہے. یہ آٹومیٹکلی پتہ چل سکتا ہے کہ اگر GPS سسٹم حاضری کا ہو جائے. بہت اچھا ہے. تو آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہونا چاہیے GPS حاضری؟ بہت اچھی بات ہے. اس میں کیا دقت ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پانی کی لائنوں کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. روکنے کی کوشش کی گئی، ہمارے کپوارہ میں بھی کوشش کی گئی. 1-2 جگہ ہمیں پھر پولیس کی جو ہے انٹرونشن کرنی پڑی. زنانہ پولیس کو بھی لے جانا پڑا اور ریگولر پولیس بھی چلی گئی، اور پولیس کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے پھر لوگوں کے کھیتوں میں سے بھی لائنیں لگائی گئیں، لوگوں کے باغوں میں سے بھی لگائی. ہم پورے شہر کی گند اگر کہیں نہیں اس کی جگہ ملتی ہے دریا کے کنارے ڈالتے ہیں. محلوں سے بھی نکلتا ہے، سب دریاؤں میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہی پانی ہم نے آگے پینا بھی ہے. پانی کے سورسز اب ہمارے پاس میں یہ بتاؤں کہ نہیں ہے. پورے ایریا میں آپ کا پہرو ہے، پہرو ہی کے اوپر ہمارا سارا ایریگیشن بھی ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کروں گا عوام سے، مساجد کے ائمہ سے، کہ لوگوں میں یہ بات بتائیں، جمعے کے خطبوں میں بتائیں کہ مہربانی کر کے پانی کے ساتھ جو ہے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. جتنے زمین کے اندر کا پانی ہو، زمین کے اوپر کا پانی ہو، یہ سارا گورنمنٹ کا پانی ہے. اور گورنمنٹ جو ہے لوگوں کی بہبود کے لیے جس پانی کو جس گاؤں کے لیے مناسب سمجھتی ہے اسی طرح سے اسکیمیں بنائی جاتی ہیں. اربن کے لیے ہمارے پاس امرت کا ایک پروگرام ہے. جیسے ابھی ٹاؤن ہے ہمارا، کپوارہ کا ٹاؤن ہے، ہندوارہ کا ٹاؤن ہے، لنگیٹ کا ٹاؤن ہے، سوپور کا ٹاؤن ہے، بارہمولہ کا ٹاؤن ہے، بانڈی پورہ کا ٹاؤن ہے. یہ JJ مشن میں کور نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے امرت کا ایک الگ سے پروگرام ہے. اس کے DPRs بن چکی ہیں، اس کی فنڈنگ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہو جاتا ہے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ ملاقات کے اس پروگرام میں جناب سلیم صاحب ہے، جو نارتھ کے سپرنٹینڈنگ انجینئر ہے PHE ڈپارٹمنٹ کے، اور ان کی جو چارج ہے وہ بارہمولہ سوپور کی بھی ہے، کپواڑہ کی بھی ہے اور بانڈی پورہ کی بھی ہے. بہت بڑا علاقہ، یعنی کہ ناربل سے جو
इलाका शुरू होता है, 3 डिस्ट्रिक्ट है ये, बारामूला है, कुपवाड़ा है, बांडीपुरा है, तीनों डिस्ट्रिक्ट इनके चार्ज में आ रहे हैं। यही मानना है लोगों का कि सलीम साहब इंजीनियर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत खूबी से कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारी जो ग्रीवेंसेस है लोगों की वो सॉल्व भी की। लोग ऐसे कहते हैं कि ग्रीवेंस पूरी तरह से रिड्रेस नहीं हुई है, क्योंकि डिपार्टमेंट का जो काम है वो सही तरह से डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है। अब जानना चाहेंगे हम जनाब सलीम साहब से कि लोग पानी 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 कर रहे हैं, जैसे कि सोपोर की बात करें, बारामूला की बात करें, बांडीपुरा, कुपवाड़ा वगैरह सारे ये नॉर्थ की बात करें, लोग पानी पानी कर रहे हैं मगर उनको पानी नहीं मिल रहा है। एक मिसाल मैं आपसे देना ये चाहूँगा कि सोपोर को आप जो फीडिंग कर रहे हैं पानी से 24 घंटा में 1 घंटा आप सप्लाई इनको दे रहे हैं, जैसे कि डिफरेंट एरिया को 1 घंटा, फिर उसके बाद दूसरे इलाके को 1 घंटा, ये 1 घंटा फीड कर रहे हैं, लोगों तक पानी पहुंच रहा है। और इस 1 घंटे में वो कितना पानी लेगा, और प्रेशर इतना भी नहीं होता कि दूसरी या तीसरी या चौथी स्टोरी पर पानी पहुंचे। तो लोग इस वजह से बहुत सारे परेशान है कि पीएचई जो डिवीजन है, डिपार्टमेंट है, सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं और सही तरह से लोगों को खिदमत नहीं कर रहे हैं, और सही तरह से जो इनकी ड्यूटी है लोगों को पानी देने का, पानी नहीं दे पा रहे हैं। सर, क्या वजह है? मैं बिल्कुल आपसे इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम ज़िंदगी के एक बहुत ही बेसिक एम्यूनिटी के साथ हमारा काम करने का जो डिपार्टमेंट है उसके साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ लोगों को पीने के पानी की जिम्मेदारियाँ जो हैं हमारे कंधों के ऊपर डाली गई हैं इस पूरे इलाके में। इसमें पानी की दिक्कतें कमियाँ रही हैं, ये गवर्नमेंट की भी नॉलेज में है, और उसी के रहते हुए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल जल जीवन मिशन के नाम से गवर्नमेंट ने कंसीव किया और पूरे मुल्क में इसको जो है लागू करने की कोशिश की। हमने भी जब हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी आई तो पूरे इलाके का, पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज़ है, उनकी जितने भी गांव थे हमारे, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हमारे बारामूला के 582 गांव हैं, बांडीपुरा के 140 गांव हैं, कुपवाड़ा के 501 गांव हैं। तो ये बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इन सारे इलाकों में जाकर के लोगों ने रेकीज़ की हैं, सर्वेस की हैं, उनकी डीपीआरस बनाए हैं, और अल्टीमेटली इसका जो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान होता है वो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से इसको अप्रूव करवाया। उसके बाद ये काम शद्दो मद से आज की डेट में पूरे मुल्क के साथ हमारी रियासत में भी जो है पूरे ज़ोर शोर से यूटी में ये काम चल रहा है। इसके होते हुए जब हमने इसको शुरू किया था, मैं कहता हूँ कि खातिर ख्वाह जो है लोगों को सहूलियात हम पहुँची हैं, लेकिन अभी भी हम 100% जब तक इस अपने मिशन में कामयाब नहीं होते हैं तब तक ये मसाइल हमें फेस करने पड़ेंगे। लोगों की दिक्कतें, लोगों की मुश्किलात हमारे सर आँखों पे हैं। अगर वो दिक्कतें और परेशानियाँ और मुश्किलात न होती तो ये जेजेएम का मिशन भी नहीं होता। ये उन्हीं को एड्रेस करने के लिए मिशन बनाया गया है, और मिशन को पाए तकमील तक पहुंचने के लिए कुछ वक्त दरकार चाहिए होता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि स्कीम जो है एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में बनेगी। इसका सोर्स कहीं पहाड़ पे होता है, फिर ग्रेविटी लाइन आती है, कोई कहीं जंगल से आएगी, कहीं फॉरेस्ट से आएगी, उसमें फॉरेस्ट का भी एनओसीज रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, आपको प्रवेश पे जाना पड़ता है, केएमएल फाइल सबमिट करनी पड़ती हैं। तो वो सारा करके फिर फॉरेस्ट की एनओसीज आती हैं, फिर जाके हम जंगल में कोई काम कर सकते हैं। कहीं हाई अल्टीट्यूड पे आपका कोई रिजर्वायर, कोई स्ट्रक्चर, कोई फिल्ट्रेशन प्लांट है, अगर वो आपकी ज़मीन नहीं है, किसी डिपार्टमेंट की है, उसको भी प्रॉपरली आपने हैंड ओवर करना है डिपार्टमेंट के लिए, तब जाके आप वो अलॉटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट कर पाएंगे ग्राउंड पे। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो भी कभी रास्ते से क्रॉस करना है, कभी बीकन का एनओसी का इशू आता है, कभी आरएनबी, कभी
PMJSY کے ایشوز آتے ہیں. تو ان سارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ تال میل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کی نگرانی میں اور جو ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری محترم کابرا صاحب ہیں، ان کی کاوشوں اور ان کے انتھک محنتوں اور بہت زیادہ پرسوینس کی وجہ سے یہ مشن اس وقت جہاں ہے یہ انہی کا خاصہ ہے. ہم لوگ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اسٹیٹکس بھی بتا دوں کہ آج کی ڈیٹ میں اگر بارہ مولہ میں ہمارے پاس 1,45,900 کے آس پاس جو ہے فنکشنل ہاؤس ہولڈ ٹیپ کنیکشنز تھے جو ہمارے ریکارڈز میں ہیں، اس میں سے ہم 1,17,000 آلریڈی کور کر چکے ہیں. یہ قریباً 80% بنتا ہے. 81% کی FHTCs ہم کوریج دے چکے ہیں آج کی ڈیٹ میں. بانڈی پورہ کے ہمارا قریباً 140 گاؤں ہیں. اس میں بھی ہم 47,358 FHTCs تھے، جس میں سے 38,000 FHTCs ہم کور کر چکے ہیں. اور یہ FHTC جب کور ہم کرتے ہیں یہ پراپرلی ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے، جس میں پانی سمیتی کے لوگ شامل ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ شامل ہوتے ہیں، سرپنچ شامل ہوتا ہے، ان کی ویڈیوگرافی ہوتی ہے. تب جا کے وہ اس کو سرٹیفائی ہم کرتے ہیں کہ بھائی یہ FHTC ہوا یا کوئی گاؤں ہوا یا کوئی اس طرح سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو اس کو پراپرلی آپ اس کو اپلوڈ بھی کرتے ہیں پورٹلز پہ. اور کوئی بھی یہ ایک ٹرانسپیرنٹ مینر میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کوئی بھی آدمی اپنے گھر کا، اپنے FHTC کا، اپنے محلے کا سٹیٹس دیکھنا چاہے، وہ ڈیش بورڈ ہے JGM کا، اس پہ جا کر کے ساری انفارمیشن وہ لے سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بہت مور دین 50% ہو چکا ہے. بارہمولہ میں ہم نے قریباً 22 اسکیمیں کمپلیٹ کی ہیں. بانڈی پورہ میں ہماری 7 اسکیمیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں. دور دراز جو علاقے ہمارے ہیں، مثال آپ کا ٹنگڈار کا علاقہ ہے، متسل کا علاقہ ہے، وہ ہمارا پریارٹی کابرا صاحب کی یہ ڈائریکشن تھی کہ جو ہمارے سنو باؤنڈ ایریاز ہیں، جو جہاں آنا جانا دقت ہو جاتی ہے بعد میں پاسز پہ برف باری کی وجہ سے، وہاں کا مٹیریل بھی ہم پہلے ہی پہنچا چکے تھے، الاٹمنٹ بھی پہلے کر چکے تھے. اور ٹنگڈار میں ہم نے 4 اسکیمیں کمپلیٹ کی ہیں. 11 اسکیمیں ٹنگڈار کی، 4-5 اسکیمیں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. آنریبل گورنر صاحب سے ہم ان کی انوگریشن کروائی ہے. کپوارہ میں ہم نے اتھوٹا ایک اسکیم کروائی ہے، پیر خان محلہ کی ایک اسکیم کروائی ہے، متسل میں ہم نے اسکیمیں کروائی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب کام بے شک ہو رہا ہے. ہاں، لوگوں کی توقعات کے حساب سے آج کی ڈیٹ میں نہیں ہو سکتا، میں مانتا ہوں اس میں کچھ کمیاں ہوں کچھ، لیکن جب آپ کام کریں گے تو ہی اس میں آپ کچھ، جب آپ کام ہی نہیں کریں گے تو پھر تو سب کچھ ٹھیک ہی ہے. سوپور کا علاقہ جو یہاں آپ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، اور سوپور سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل ہیں. سوپور کی میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو میں نے ابھی تک یہ جو بات بتائی یہ سارا رورل ایریاز کے لیے ہے. جل جیون مشن کا جو پروگرام ہے وہ اربن ایریا کے لیے نہیں ہے. اربن کے لیے ہمارے پاس امرت کا ایک پروگرام ہے. جیسے ابھی ٹاؤن ہے ہمارا، کپوارہ کا ٹاؤن ہے، ہندوارہ کا ٹاؤن ہے، لنگیٹ کا ٹاؤن ہے، سوپور کا ٹاؤن ہے، بارہمولہ کا ٹاؤن ہے، بانڈی پورہ کا ٹاؤن ہے. یہ JGM مشن میں کور نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے امرت کا ایک الگ سے پروگرام ہے. اس کے DPRs بن چکی ہیں، اس کی فنڈنگ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے سوپور کے میں پچھلے دنوں اپنے ایکشن سے بات کر رہے تھے کہ ان کا پروگرام جو ہے پہلے انہوں نے کافی سارے آپشنز، کیونکہ اب آپ کا پانی پہلے وٹل وغیرہ سے آتا تھا تو اس میں دقتیں آتی ہیں. 30 35 38 کلومیٹر کی وہ اس کی پائپ لائن لگتی ہے، اس میں راستے میں انفرنجمنٹ ہو جاتی ہے اور اس سے ٹاؤن کی ڈپینڈیبلٹی جو ہے وہ ایشور نہیں رہتی ہے. اس لیے یہاں کے شعور لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ہمارا سورس ہمارے پاس ہو، وہیں سے لفٹ کر کے اس کو کیا جائے، اور وہی کیا گیا ہے. DPR کا پروویژن ہی وہی ہے. ہم نے جہلم سے اس میں پرپوز کیا ہے لفٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد اس کی فلٹریشن کا پراوڈھان رکھا ہوا ہے تاکہ پانی بھی ویسینٹی میں ہو، اس کو فلٹر کر کے اس کو جو ہے جو سٹوریج ٹینکس ہے وہاں سے، اور تاکہ اس کو جو ہے پراپرلی اس کو ریگولیٹ کیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دقتیں پہلے سالوں میں رہی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جب امرت کا پروگرام ہم امپلیمنٹ کریں گے تو سوپور کی جو دقتیں ہیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. سوپور ایک ایسا ٹاؤن ہے جہاں پہ کافی زیادہ میسیو ایکسپینشن ہے. ایکسپینشن بھی جو ہے وہ پلانڈ طریقے سے نہیں ہوتی ہیں جیسا ہونا چاہیے تھا کہ بھائی ایک پرٹیکولر ڈیزگنیٹڈ ایریا جہاں آپ کی کالونیز بنتی ہیں وہاں سارے ڈپارٹمنٹ سے NOC آ جاتی. ایسا نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے میرے پاس جہاں پہ زمین ہوگی وہاں بنائیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے کافی سٹرگل کرنا پڑتا ہے
उन सारे इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए जहाँ पे लोगों ने अपने घर बनाए होते हैं। सर, सोपोर की एक कदीम स्कीम है जो 60-70 साल पहले बनाई गई है, शरकवारा स्कीम है जो पीएचई की तरफ से लॉन्च हुई थी 60-70 साल पहले, और इसके बाद आई थी वटलब की एक स्कीम। तो उसके बाद तीसरी स्कीम आई है जो महाराजपुरा की स्कीम है, जहाँ से दरिया झेलम से पानी लिफ्ट कर रहे हैं और सोपोर को उस इलाके को दे रहे हैं, महाराजपुरा, आरमपुरा वगैरह इलाके को। मगर लोग ये कह रहे हैं कि जो पीएचई डिपार्टमेंट है 10% लोगों को भी फीड नहीं कर पा रहे हैं सोपोर में। आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आए दिन मुजाहरा हो रहे हैं पीएचई के खिलाफ, और कई बार ऐसा है कि जो यहाँ की ताजर बरादरी है, ट्रेडर्स फेडरेशन से वाबस्ता लोग आपसे मुलाकात भी किए हैं इस सिलसिले में कि सोपोर का पानी कहाँ गया। अगर 70 साल 60 साल पहले उसके बाद 2 स्कीमें हो रही है, तो ये जो मामला है 10% लोग जो फीड नहीं कर पा रहे हैं सर ये आपका डिपार्टमेंट, तो 90% लोग कहाँ जाएंगे? तो अभी कह रहे थे आप 80% लोगों का हमने रिकवर किया है, ये फीड अप किया है। तो मुझे नहीं लगता है सर लोग ये नहीं मानते हैं कि आपने 80% लोगों का फीड अप किया है। फिगर्स मैं दे रहा हूँ ये टाउन के अलावा के फिगर्स हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि टाउन्स के लिए जेजेम जो है प्रोग्राम नहीं है, उसके लिए अमृत का प्रोग्राम है। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे वो उसकी मतलब ग्रीन सिग्नल आ जाएगा तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। जहाँ तक ताजर बरादरी का ताल्लुक है, सोपोर की जो फ्रूट मंडी का एक प्रोजेक्ट था पीएमडीपी का, तो उसमें सारे ही कंपोनेंट्स हमारे बन चुके हैं। लकीली मैं कल ही बात कर रहा था इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडी अपने इनसे कि ये जो स्कीम है इसमें जितना सिविल कंपोनेंट था, मुझे लगता है करीबन 4.5-5 करोड़ के आसपास की स्कीम है ये, जिसमें मैकेनिकल का भी सारा कंपोनेंट जो उन्होंने परचेज़ करना था वो भी रखा हुआ है। उसमें राइजिंग में है और 2 स्टेज की लिफ्ट है, उसमें पहले सेकंड स्टेज का इलेक्ट्रिकल सारा उसमें बना हुआ है। पहले स्टेज के लिए इलेक्ट्रिकल का जो एक्शन मैकेनिकल हमारे थे वो मुझे कह रहे थे कि एक तो उसमें एक डेडिकेटेड फीडर लाइन चाहिए उसमें, और कुछ पोल चाहिए, करीबन 30-35-40 लाख का काम उसमें बैलेंस है। तो फ्रूट मंडी वाला जो इशू है वो उससे हो जाएगा मुझे लगता है। हमने डी साहब से जो बात की है उनसे टेकअप करके ये मसला इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट उसके बन चुके हैं, स्टोरेज भी बन चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है, उसका पंप रूम भी बन चुका है, सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं उसके। खाली उसका पावर सप्लाई का इशू है जो हमने पीडीडी को पैसे देने हैं, लेकिन उसमें ऐसा है कि वो जो पैसा देना था वो हॉर्टिकल्चर का पैसा है, वो डिपार्टमेंट का अपना पैसा नहीं है। तो उनकी पैसे की जो फ्लो है उसमें कोई दिक्कत आने की वजह से वो टेकअप हम पीडीडी तब काम करता है जब आप उनको पैसे दें। पहले उनको पैसे देने हैं तब जाके वो अपना काम करेंगे, उसके ऊपर हम काम करें इंशाल्लाह। वो मसला भी जो फ्रूट मंडी वाला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, जो यहाँ बिजली की बात आई है, जो आप कह रहे हैं कि अभी बिजली की सुविधा वहाँ पे प्रोजेक्ट पे नहीं है, तो इस वजह से अभी वो काम मुकम्मल नहीं हुआ है। की बात जो आई है, यहाँ वटलब की स्कीम में आप जनरेटर से भी पानी अपलोड कर रहे हैं, और यहाँ महाराजपुरा है, बिजली ना हो तो यहाँ पे जनरेटर की भी सुविधा है। मगर लोग ये कह रहे हैं कि जो जनरेटर लगे हैं बिजली न होने की वजह से चलाए नहीं जाते, या बैटरी बैकअप नहीं होता है, या जनरेटर नहीं वहाँ पे चलाए जाते हैं, उनका फ्यूल नहीं होता है। यही हाल महाराजपुरा का है और वटलब का है। इस वजह से भी पानी का ब्रेकअप आ रहा है। ये मुझे इसका फीडबैक जो है, कंसर्न जो एक्शन है मैकेनिकल के शाहिद साहब, मैं उनसे ये लेकर के, ये आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू उठाया, क्योंकि जब वो एग्जिजेंसी में हम करते हैं, जब वो वाला नहीं चलता तो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट होता है। तो मैं इसका एक फीडबैक लेकर के इंशाल्लाह आपसे ये शेयर करूंगा मैं। अच्छा सर, बहुत सारी जगह ऐसी है यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में या कुपवाड़ा में या बांडीपुरा की अगर हम बात करें कि जहाँ पे 35 साल पहले या 30 साल पहले स्कीम लॉन्च की गई है, पाइपें बिछाई गई है, नल भी लगाए गए हैं, मगर पानी उनको 35 साल से नहीं मिल रहा है, 35 साल से नहीं मिल रहा है। आपका डिपार्टमेंट वहाँ पे ड्यूटी दे रहा है, लोग वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, मगर पानी नहीं मिल रहा है। और ऐसा होता है कि किसी जगह पे ऐसा हुआ है कि जो पाइपें बिछाई गई फिर उखाड़ी गई, फिर बिछाई गई फिर उखाड़ी गई, ये सिलसिला चलता रहता है, आज तक चलता रहा है। और मगर जिसके लिए ड्यूटी थी पानी देने का,
मगर पानी नहीं दे रहे हैं, तो ड्यूटी किस बात की सर? नहीं जहाँ तक ये पानी पाइपें लगाने और पाइपें उठाने का आपने सवाल किया है, मुझे भी यहाँ 2 साल हो गए, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो मैंने ऐसा तो नहीं देखा पाइप, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, लगाने के लिए भी पैसे चाहिए, तो उखाड़ने के लिए भी पैसे चाहिए। तो सोच समझ के स्कीम बनाई जाती है, प्रॉपर्ली डेलिब्रेट करके किया जाता है, ग्राउंड ट्रूथिंग की जाती है, और तब जाके पाइप, अगर पुराने वक्तों में कहीं हुआ हो तो मैं उसके लिए मैं नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन आज की डेट में जो भी पाइप लगाई जाती है प्रॉपर्ली डिज़ाइन तरीके से होती है, और इतने सारे लोगों का उसमें जो है इशू रहता है, उसके साथ मुंसलिक रहते हैं, पानी समिति के लोग, उनको जिम्मेवारी दी गई है। और मैं आपको बताऊं कि मैं फिर जेजेम ही पे आऊँगा कि ये जेजेम की स्कीम जो हैं ये लोगों की स्कीमें हैं, पहले भी लोगों ही की स्कीमें होती थी, लेकिन अब लोगों को ये एहसास कराने के लिए कि वाकईतन ये हमारी स्कीमें, ये स्कीमें बनाने के बाद हमने लोगों ही के हैंड ओवर कर देनी है, इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस सब कुछ लोगों ने खुद करना है, जो जिसके लिए पानी की समितियां बनाई गई हैं गाँव में भी और पंचायत में भी। जब कल को स्कीम हम जब इनॉग्रेट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, पंप रूम उसका होता है, उसका राइजिंग मेन है या ग्रेविटी है या रिजर्वायर है, और हर घर के ऊपर हमने जो पानी उसको फंक्शनल कर देना है, उनका उस एक वीडियो बनता है, जनाब ये क्या चलती है नहीं चलती है, सब ठीक है। जब वो एग्री हो जाते हैं उसके बाद वो उसके कागजात उनके हवाले किए जाते हैं, ताकि उनको इस चीज़ का एहसास को ये स्कीम हमारी है, इसके साकट की भी हमने रखवाली करनी है, इसके पानी को भी हमने देखना है, कहीं इसका फ्रॉस्ट ना हो। क्वालिटी के दौरान भी उनके साथ जब हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं है, पहले वक्तों में होता था कि मैं जाके कंट्रैक्टर साहब ने काम किया, मैंने जाके उसका मेजरमेंट की और हमने पेमेंट की, ऐसा नहीं है। पेमेंट करने से पहले जो हम बिल बनाते हैं उसकी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी होती है। एक एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से नॉमिनेट की है जो हमारे किए हुए काम को वेरीफाई करती है। हम जो काम करें वो उसके साथ सहमत भी हो सकते हैं अगर हमने सही किया हो, अगर वो हमसे डिफर भी करेंगे अगर हमने गलत किया हो। उनका चेक करने के बाद फिर उसकी पेमेंट होती है। पेमेंट भी टाइम बाउंड है। अगर आप कंट्रैक्टर हैं, आपने काम किया, तो आपने इंजीनियर साहब के पीछे पीछे चलने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक वेबसाइट है, आपने वहां पे अपनी रिक्वेस्ट डालनी, जनाब मैंने काम किया है, मुझे पेमेंट चाहिए। आपकी रिक्वेस्ट के 15 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट हो जाती है। आज की डेट में भी मेरा भी हर दूसरे दिन करीबन 20, 25, 12 बिल्स मैं भी इंश्योर करता हूं कि मेरे टेबल से वो 2 दिन के अंदर निकल जाए। सिस्टम्स जो हैं काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, लोग पीपल सेंट्रिक स्कीम्स हैं सारी। जब हम काम करके स्कीम बना करके गांव वाले के हवाले कर देते हैं, वो होज की भी रखवाली करेंगे, उसके ढक्कन की भी रखवाली करेंगे, ग्रेविटी मेंस की भी रखवाली करेंगे, और इस चीज़ से उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी। ये हमारी चीज़ है, हमारे पैसे से बनी है, हम ही लोगों के लिए बनी है, और हमने ही इसका रख रखाव जो है करना है। सर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, बजा फरमा रहे हैं आप इस बात को नहीं मानते हैं कि 35 साल से किसी जगह को पानी नहीं मिल रहा है, जबकि लाइनें वहां पर बिछाई गई है 35 साल पहले। तो सर ठीक है, मैं ये मेरी नॉलेज में है, एक जगह है जहां पे लाइनें 1975 में बिछाई गई है, 1975 में लाइनें वहां बिछाई गई है, 50 साल तक। और पानी 6 महीना या 1 साल उनको दिया गया, और तब से आज तक उनको पानी नहीं मिला। वो पानी का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, पानी उनको कब मिलेगा। अब वहां पे जल जीवन स्कीम लॉन्च हुई है, तो चल रहा है उस पर काम। मगर सवाल ये है कि यहाँ पे जो उन्होंने सफ़र किए हैं बीच में, तकरीबन 40-45 साल सफ़र उन्होंने किया है, पानी न मिला उनको। एक ऐसा गांव बीच में आ गया जिन्होंने उनका पानी इंटरसेप्ट किया है, पानी उनको नहीं दिया गया। तो जो ऐसी सूरत हाल आपके सामने आ रही है, कहीं से आपको दूसरे गांव का या तीसरे गांव को एक स्कीम बनाई है आपने 10 गांव के लिए, एक गांव या 2 गांव बीच में आते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं पानी हमारा है, हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। ये है, ये बिल्कुल आप कहें।
نہیں میں نہیں ان کا نام بھی بتاؤں گا یہ ہمارا کہ انہوں نے انٹرسپٹ کیا ہے ہمارا 40-45 سال میں سے بالکل وہ آپ کی بات سے سہمت ہوں، پانی نہیں چھوڑ رہے. بالکل ہم آپ کی بات سے سہمت ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے پانی جیسی عظیم نعمت سے ہمیں اتنا مال و مال کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے. بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے مجھے، اور میرا دل بہت ہی دکھی ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگ، آسودہ حال لوگ جتنا ظلم پانی کے سورسز کے ساتھ، دریاؤں کے ساتھ، ندی نالوں کے ساتھ، جھیلوں کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے جو پانی کی اتنی بڑی بہتات میں ہمیں پانی میسر کیا ہے. اگر ہم نے اپنے رویے کو دریاؤں کے ساتھ، ندی نالوں کے ساتھ، چشموں کے ساتھ، پانی کے سورسز کے ساتھ اپنے رویے کو ٹھیک نہیں کیا، پورے شہر کی گند اگر کہیں نہیں اس کی جگہ ملتی ہے دریا کے کنارے ڈالتے ہیں، محلوں سے بھی نکلتا ہے، سب دریاؤں میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہی پانی ہم نے آگے پینا بھی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں کون سمجھانے کے لیے یہ چیز آئے گی. یہ کامن سینس ہے، بیسک کامن سینس ہے، اور ہمارا مذہب اس چیز کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ پانی کے سورسز کی کتنی قدر و منزلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ ایک دریا کے اوپر وضو کر رہے تھے، وہاں بھی اسراف سے پانی استعمال کرنے سے منع کیا گیا، حالانکہ دریا پہ تھے. پانی کا جتنا درپیوگ ہم کرتے ہیں، جتنا استحصال ہم پانی کے ساتھ کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں we will have to pay for it. We will have to pay for it very dearly. چھوٹے بچے ہوں، عورتیں ہوں، بزرگ ہوں، میں کہتا ہوں کہ جمعہ کے بیانات میں مسجد میں یہ ایک چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے، اور پانی کے ان ذرائع کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے اس کو بہت بڑے پیمانے پہ کرنے کی ضرورت ہے. کسی این جی او کو، گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے، لیکن پانی کے جو ذرائع ہیں، میں ایک ضمناً یہ بات بیچ میں آئی، میں نے کہا یہ ایک میسیج بھی عوام الناس کے پاس چلا جائے کہ ہم پانی کے ان سورسز کی جو ہے قدر کریں، ان کی عزت کریں، نہیں تو پھر وقت آتے پھر یہ اپنے طریقے سے قدرت جو ہے ہمیں سمجھاتی ہے، لیکن وہ کچھ ہی دیر کے لیے ہوتا ہے، اور کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس میسیج کو سمجھ جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے 2014 کا حال تو دیکھا ہی ہے، شاید ہم وہ بھی بھول چکے ہوں. جتنا انکروچمنٹ ہم ندی نالوں کی کرتے ہیں، جہاں کسی کو بھی کوئی کام نہ ہو، اننیسیسری کا جو ایکسٹیکشن ہے، کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی اس کا دریا کا ایک سائڈ بہہ جاتا ہے، کبھی دوسری سائڈ بہہ جاتی ہے. ایک مورل ریسپانسبلٹی ہمارے لوگوں کے اوپر ہے. 200 سال آپ نے کہا تھا کہ سورسز کے لے کے گاؤں والوں کے آپس میں، وہ ایک الگ کہانی ہے. ہر آئے دن ہمارا یہی مسئلہ ہوتا ہے. جس سورس کو کسی اسکیم کے لیے ہم نے ٹیپ کیا، اس کے پڑوس والے گاؤں آتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا پانی ہے. پانی جتنے زمین کے اندر کا پانی ہو، زمین کے اوپر کا پانی ہو، یہ سارا گورنمنٹ کا پانی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے لوگوں کی بہبود کے لیے جس پانی کو جس گاؤں کے لیے مناسب سمجھتی ہے اسی طرح سے اسکیمیں بنائی جاتی ہیں. یہی پانی ہمارے اریگیشن کے بھی کام آتا ہے. اسی دریا کے اوپر ہماری جو ہے پانی کی اسکیمیں بھی ہیں. یہ معاملات ہم اتنا آئے دن ان کے ساتھ جو ہے نپٹتے ہیں. خاص کر میں پانی جتنے زمین کے اندر کا پانی ہو، زمین کے اوپر کا پانی ہو، یہ سارا گورنمنٹ کا پانی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے لوگوں کی بہبود کے لیے جس پانی کو جس گاؤں کے لیے مناسب سمجھتی ہے اسی طرح سے اسکیمیں بنائی جاتی ہیں. یہی پانی ہمارے اریگیشن کے بھی کام آتا ہے. اسی دریا کے اوپر ہماری جو ہے پانی کی اسکیمیں بھی ہیں. یہ معاملات ہم اتنا آئے دن ان کے ساتھ جو ہے نپٹتے ہیں. خاص کر میں آپ کو کپوارہ کے لولاب ایریا کی بات بتاؤں، لوگوں کو پانی بھی چاہیے، اور مطلب ایک ایسا ٹائٹ روپ واکنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. جب پیک سیزن ہوتا ہے اس وقت ہمارے دھان کے کھیتوں کے لیے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے، اس وقت پانی پینے کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے، بیکاز اس میں جو ہے کنزمپشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پانی کے سورسز اب ہمارے پاس میں یہ بتاؤں کہ نہیں ہے. پورے ایریا میں آپ کا پہرو ہے، پہرو ہی کے اوپر ہمارا سارا اریگیشن بھی ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کروں گا عوام سے، مساجد کے ائمہ سے، کہ لوگوں میں یہ بات بتائیں، جمعے کے خطبوں میں بتائیں کہ مہربانی کر کے پانی کے ساتھ جو ہے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. اس کے جو دریا کے حقوق ہیں، پانی کا جو ویلیو ہے وہ سمجھیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جیسا برتاؤ کیا جانا چاہیے ویسا ہی برتاؤ کریں، تاکہ ہمارے پینے کے مسائل بھی حل ہوں اور اریگیشن کے مسائل بھی. بڑی اچھی بات ہے. پانی پہ
किसी का राइट नहीं है, पानी गवर्नमेंट का है। और देखने वाली बात यह है, और यहाँ पे कहने में ये जा रहा हूँ कि पानी पर जब किसी का हक नहीं है तो ये इंटरसेप्ट या पानी में बाधा डालने का, डिलीवरी में बाधा डाल रहे हैं आपके डिपार्टमेंट को, या इंटरसेप्ट पानी को कर रहे हैं। क्या कानून की कोई इसमें जवाज़त है, या कानून की कोई शिक ऐसी है कि जिसमें हमें राइट मिले कि हम पानी को थ्रू कर सकें, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आ रहा है उसको हटाएं? बिल्कुल, हमारी पहली कोशिश ये होती है कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो। अपनी सवाबदीद और अपनी मकदूर पर कोशिशों से हम ये करते हैं कि अगर कहीं दो फरीक गांव के दरिया के उस तरफ इस तरफ वालों का या ऊपर या नीचे वालों का एक काउंसलिंग करके, उनके जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे बात करके मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यही सारी बातें उनके सामने भी की जाती हैं, बताया जाता है। अगर और अक्सर बेशतर हमारा मसला उसी से हल हो जाता है। अगर कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो शायद उसके बाद फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस की इंटरवेंशन या रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हमें दिखाने पड़ते हैं, उनको समझाना पड़ता है कि भाई ये दरिया की ज़मीन है, यहाँ हम कोई बोरवेल बनाएंगे या इसमें ट्यूबवेल बनना है या कोई डगवेल बनना है या कोई स्ट्रक्चर हमने बनाना है। क्योंकि दरिया जब अपने असल रूप में होता है तो वो एक काफ़ी एरिया लेता है बहने के लिए, और आगे पीछे फिर वो इतना एरिया नहीं लेती है। जैसे आजकल का लीन सीज़न है तो उसके जो किनारे हैं काफ़ी जो है वो खुले पड़े रहते हैं। लोगों का भी होता है कि चलो उस ज़मीन को इस्तेमाल किया जाए, घास चराई है या क्या है। तो ये लोगों का आपस में एक रहता है कि भाई ये ज़मीन हमारी है या उस तरह से। तो अगर उस तरह से मतलब अपनी इंटरवेंशन मसला हल नहीं हुआ तो फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प भी लेते हैं ताकि लोगों को समझाया जाए कि इस तरह से आपस में, क्योंकि उन्होंने रहना सहना वही है, हम चाहे तो बदलाए नहीं जा सकते हैं। तो काउंसलिंग करके काम हम निकाल ही लेते हैं इंशाल्लाह, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। कानून यहाँ पे क्या कहता है? अगर कोई भी शख्स या कोई भी घर या कोई भी मोहल्ला पानी में बाधा डाले तो यहाँ पे कानून क्या कहता है? मैं आपको बताऊं कि पानी की लाइनों को कोई भी नहीं रोक सकता है। रोकने की कोशिश की गई, हमारे कुपवारा में भी कोशिश की गई। एक दो जगह हमें फिर पुलिस की जो है इंटरवेंशन करनी पड़ी, जनाना पुलिस को भी ले जाना पड़ा और रेगुलर पुलिस भी चली गई। और पुलिस के होते हुए उनके सामने फिर लोगों के खेतों में से भी लाइनें लगाई गई, लोगों के बागों में से भी लगाई। ये कहते हुए मैं आपसे ये भी बात कहूँ कि अगर हमें गवर्नमेंट ये हक देती है कि हम किसी के भी गाँव, किसी के बाग या गाँव या किसी भी ले जाएं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बेदरेग ऐसा करें। जब हम साइट पे जाएं तो हमें भी अपना सवाबदीद इस्तेमाल करनी चाहिए कि अगर आपके बाग से मैं ले जाऊं तो बाग के बीचों बीच में न ले जाऊं, इस तरह से न ले जाऊं कि आपका कोई पेड़ डैमेज हो। हद्दुल इम्कान कोशिश हमारी ये होती है कि जितने आपके कंसर्न्स एड्रेस हो सकते हैं उतने किए जाएं। अगर हमारी पाइपलाइन आपके बाग में से गुजरनी है तो आपके बाग में से ही गुजरेगी, और ऐसे गुजरे कि जिससे आपको कम से कम तकलीफ हो। ये हमारी कोशिश होती है। जी, सही बात है, अच्छी बात है। पानी इंटरनेशनलाइज हुआ है कि इस पे किसी का राइट आप रोक नहीं सकते, छीनने का राइट नहीं है, रोक नहीं सकते, कोई रोक भी नहीं सकता है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए इंटरनेशनली पानी होना चाहिए, लोगों के लिए अवेलेबल होना चाहिए। जो बेसिक राइट है लोगों का, पानी उनको मिलना है, क्योंकि आपके घर में जो पानी आता है वो भी किसी के बाग से होता हुआ है, किसी की सड़क से, तभी जाके आपके घर में पहुंचा। अगर आपके रकबे से भी या बाग से या किसी एरिया में से जाता है, कोई लाइन जाती है, तो आप भी उसको रोकेंगे नहीं। हाँ, ये कि डिपार्टमेंट के साथ तालमेल करके कि उनके साथ एक कंसेंसस बनाया जाए कि कहाँ से पाइप ली जाए ताकि आपको भी उसमें कोई दिक्कत ना हो और डिपार्टमेंट भी अपना काम कर पाए। सलीम साहब, कुछ लोग डिपार्टमेंट पे आरोप लगा रहे हैं, एलिगेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो इलीगल कनेक्शन दे रहा है लोगों को। जो मसलन ऐसे भी वो कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट से वाबस्ता लोग हैं उनका जीआर नहीं करता है, वो फ्री में पानी ले लेते हैं। ऐसी है कोई स्कीम की डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको पानी फ्री में मिले, या
किसी को कोई ऐसा राइट है जी, डिपार्टमेंट ऐसा- में ऐसा वो नहीं। किसी का जैसे कोई कनेक्शन इलीगल में दे? ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं है। डिपार्टमेंट के लोग, छोटा अफसर हो या बड़ा अफसर, पहले उसको अपना कनेक्शन रेगुलराइज करना चाहिए, अपने सारे जो आउटस्टैंडिंग हैं वो सारे पे करने चाहिए, ताकि उसको एक मॉरल अथॉरिटी बने। बाद में मैं आपसे कहूँ जनाब आपके पैसे जो बकाए डिपार्टमेंट, जब मैंने खुद ही अपने पैसे नहीं दिए हूँ या मैंने अपना कनेक्शन खुदा न खास्ता 2 नंबर का लगाया है, तो मेरी वो मॉरल स्टैंडिंग नहीं रहती मैं आपसे पैसे मांगूं। तो मैं नहीं समझता हूँ इस तरह से है। लेकिन मैं आपकी इसको ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमको बदले हुए हालात के साथ अपने आप को ढालने में शायद दिक्कत हो रही है और कुछ टाइम ले रहे हैं। हम में से अक्सर लोग तो बदल चुके हैं, लेकिन शायद किसी के दिमाग में कोई अभी इस तरह की बात हो जिस चीज़ की तरफ आपने अभी इशारा किया। तो अदरवाइज ऐसा बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। सर एक चीज और है, एक लोग ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट के जो लोग हैं सही तरह से ड्यूटियां फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी जगह पे 5 लोग काम कर रहे हैं, 2 काम पे होते हैं, 3 चले जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं घर में, या सही तरह से ड्यूटी के फॉलो नहीं किया। या ऑफिस में जो काम होता है, 20 लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं एक जगह पे, 10 एक दिन आते हैं, 10 दूसरे दिन आते हैं, बीच में 10 छुट्टी पर जाते हैं, घर का काम करते हैं। तो ये जो लोग आप पर डिपार्टमेंट पर आरोप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि ड्यूटियां फॉलो नहीं हो रही है, तो किस हद तक सही है? ये एक ऐसा इशू है कि जिसको हमारी तरफ से इनको हिदायत तो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे होती है कि किसी भी आदमी की तनख्वाह तभी निकलती है जब उसकी प्रॉपर अटेंडेंस हो, उसकी प्रोग्रेस वॉच की जाती है। आज की डेट में जबकि हमारे पास हज़ारों काम चल रहे हैं और उसमें हमने लोगों को एंगेज करके रखा हुआ है क्वालिटी मॉनिटरिंग करने के लिए, और आए दिन लोग जो हमारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्या नाम इसका, रिटायर हो रहे हैं, नए अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही हैं। वैसे ही हमारे पास मुलाजमों की कमी है और जो हैं उनको हमने ऐसे छोड़ा भी हुआ नहीं है। रोटेशन पे सारे लोग काम कर रहे हैं और एक्शंस को बिल्कुल क्लियर कर डायरेक्शंस हैं कि इस तरह का लेतलाल वो बर्दाश्त ना करें। हाँ, बीच में कहीं एक दो इक्का दुक्का कोई ऐसा वाक़या हो तो मैं उसे इनकार भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि हमें विल हैव, मतलब अभी वी हैव नॉट कम टू द टर्म्स एज येट, जो हालात बदल चुके हैं। तो शायद कुछ एक लोगों को अभी बात समझ ना आई हो, तो जिसकी वजह से आप मुझे यह सवाल करने में जो है इस वक्त जो ये सवाल किया आपने, उनकी वजह से, तो उसको भी देखा जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या सर आप इस बात को मानते हैं कि जो अटेंडेंस है अपने एम्प्लॉयज़ की वो जीपीएस से होनी चाहिए? एक एप्लीकेशन है जीपीएस, ग्राउंड पोजीशनिंग सर्विस एप्लीकेशन है, जैसे कि टीचर्स की हो रही है, और इस तरह से ये पता चले कि इसकी जो ड्यूटी है एक एम्प्लॉय की कहाँ पे है और इसकी पोजीशन, लोकेशन कहाँ है, ये ऑटोमेटिकली पता चल सकता है कि अगर जीपीएस सिस्टम हाजिरी का हो जाए। बहुत अच्छा है। तो आप इस बात को मानते हैं कि होना चाहिए जीपीएस हाजिरी? बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? फिर अभी एक और बात है सर, आपका डिपार्टमेंट है, किसी जगह से कोई 15 साल से काम कर रहा है और वहीं पे अभी भी तैनात है, कोई 10 साल से काम कर रहा है और उसी जगह पे वहीं भी है, कोई रिशफल नहीं हुआ है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो ट्रांसफर रूल्स है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। मैं आपको ये बात बताऊं कि इतना बड़ा महकमा है और इतने, जैसे फिगर मैंने आपको अभी बताया है कि 80%, 76-78% पॉपुलेशन जो रूरल है, हमने उनको पोर्टेबल वाटर के साथ जो है कनेक्ट किया है। तो इतनी बड़ी प्रोग्रेस जो है लोगों के काम के बगैर नहीं हो सकता है, जबकि आए दिन हम लोगों को जो है सुबकदोश कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं और हमारे पास दबाव आए दिन बढ़ता जा रहा है। अगर पिछले महीने मेरे पास 2000 लोग थे, इस महीने 1800 लोग होंगे, अगले महीने 1700 लोग होंगे, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट हमारे पास अभी नहीं है उस लेवल की। तो लोग कम हो रहे हैं और काम भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये उन्हीं लोगों की वजह से ये हम प्रोग्रेस जो है कर पाए। मैंने खुद देखा हुआ है कि रात के अंधेरे में भी लोग, हम 24 घंटे की ये डबल शिफ्ट में हम काम करते हैं। 5 लाख गैलन का एसआर हमने अभी बनाया है, रात के 10:30-11 बजे तक वहाँ पे
हमारी कंक्रीटिंग होती थी। अगर हमारे लोग 2-4-5 लोगों की वजह से सारा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाए, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। काफ़ी लोग हमारे मेहनती हैं, तमदही से काम करते हैं, रात को बोलते हैं काम कर, क्योंकि ये एक एसेंशियल सर्विस है। जब कहीं डिस्ट्रप्शन होती है, ठंडे पानी में भी हमारे ही लोग उतरते हैं आजकल नदी नालों में, वो भी हमारे ही लोग हैं। वो हाथ में वो लकड़ियां जलाकर आज की डेट में भी रात को चलते हैं अपने ग्रेविटी लाइंस को ठीक करने के, वो भी हमारे ही लोग हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बीच में ऐसे हों कि जैसे आपने कहा 10 लोग आते हैं 10 लोग नहीं आते हैं, शायद किसी एक जगह हो, लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी है? जहाँ तक आपने कहा कि 10-10 या 12-12 साल से लोग बैठे हैं, मैंने ऑलरेडी जो है एक सर्कुलर इशू कर दिया हुआ है सारे डिविजन्स के लिए, इरिगेशन के लिए भी और पीएचई के लिए भी, कि मुझे वो स्टे लिस्ट दे दें एम्प्लॉइज़ की जो नीचे वाले लोग हैं, ताकि मैं उनकी जो है प्रॉपर रिशफलिंग करूं जिनका स्टे ज़्यादा देर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक शख्स का किसी एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम से रहना जो है वो अपने में एक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। तो आने वाले वक्त में जैसे मेरे पास उनका स्टे लिस्ट आ जाता है, हमने मांगी हुई है उनसे, हमने चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं, जैसे आ जाती हैं तो हम उनका जो है रिशफल भी कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है कि उनका रिशफल होना चाहिए, चेंज होनी चाहिए। एक ही जगह पे किसी का कोई हक नहीं बनता है कि रहने का। तो इसमें एक बाज़ाब्ता एक ट्रांसफर पॉलिसी है सरकार के पास और आपके डिपार्टमेंट के पास, जिसको इम्प्लीमेंट करना है। मगर सर, अगर यहाँ बात ये करें कि स्टेट लेवल का जो करप्शन रेशियो है, माना जा रहा है कि स्टेट में बहुत बड़ा यहाँ पे करप्शन का जो रेशियो है बहुत बड़ा है, मगर लोग ये कहते हैं कि पीएचई में भी करप्शन है, पीएचई में भी करप्शन है। तो ऐसा क्यों है सर? मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। करप्शन नाम की कोई चीज यहां पे नहीं है। आप मुझे किसी भी काम के लिए मैं अपने दफ्तर की बात करता हूं, मैं हंदवारा में बैठता हूं या यहां बैठता हूं, मैं नहीं समझता हूं कि इससे ज्यादा लोगों के जो मामलात हैं अटेंड करने के लिए इससे ज्यादा कुछ किया जा सकता है। मैं नहीं समझता हूं। जहां जिस आदमी को जिस तरीके से सहूलियत होती है उसी तरह से उसकी जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, बगैर एक नए पैसे की इंटरेस्ट के किसी भी टेबल पे। ये क्लियर कट डायरेक्शंस हैं टॉप ऑफ द गवर्नमेंट से लेकर के नीचे तक। ये बिल्कुल बात जो है न मानने वाली है और न मैं आपसे इससे सहमत हूं। इसमें है ही नहीं किसी भी जगह कोई। सारी चीजें ओपन हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, आईएमएस पोर्टल पे अवेलेबल हैं, डैशबोर्ड अवेलेबल है। आपको एम्पावर किया गया है कि भाई आप काम करेंगे, आपने कहा जनाब मुझे पेमेंट चाहिए, 15 दिन में पेमेंट करना मेरी जिम्मेवारी है। अगर मैं नहीं करता हूं तो मुझे पूछा जाएगा। वो 15 दिन का गैप जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेरे टेबल के लिए 2 दिन है, मैं तीसरा दिन लगाता हूं तो मुझे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है। और आप यहाँ पे कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन हैं, हंदवारा की भी हैं, कुपवारा की भी हैं। यहाँ मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, मेरे पास एडिशनल चार्ज है। किसी से आप पूछिए कि यहाँ पे टेबल पे, अगर मैं यहाँ नहीं आ पा रहा होता हूँ, मैं पेपर्स जो है हंदवारा मंगा लेता हूँ ताकि कंट्रैक्टर्स की बिल्स किसी वजह से वो डिले ना हो। अगर किसी टेबल पे कोई कागज डिले रहता है, वो सोचता है शायद कुछ किसी वजह से, मैं पेपर्स वहां पे मंगा लेता हूँ, उसी दिन उसका डिस्पोजल हो जाता है। आज भी आपके आने से पहले मैंने सारा डिस्पोजल कर दिया हुआ है। ये बात बिल्कुल ये पुराने वक्तों की बात हो सकती है, आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, आप जाती तौर करप्शन के खिलाफ है और करप्शन को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं आप, और ट्रांसपेरेंसी डिपार्टमेंट में आपने लाई है। जी। अगर सवाल यहाँ पे सर ये है कि अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें, मैं एक आरटीआई के जरिए से आपका डीओबी मांगता हूं, आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर मांगता हूं, तो ये क्या आप दे सकते हैं?
اگر اس سے آپ کو کوئی فائدہ تو میں ابھی دے دوں گا, اس کو آپ کو RTA دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میرا چاہیے آپ کو. میری ڈیٹ آف برتھ 3464 ہے, میری اپائنٹمنٹ 5 بنوے کی ہے, میری جو پوسٹنگ ڈیٹیل ہے میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتا ہوں. آپ کو چاہیے تو میں نہیں, مجھے نہیں چاہیے. ایک کوشچن ہے, یہ ایک کوشچن ہے. اگر کسی کو شک ہو رہا ہے, مجھے ڈاؤٹ ہے کہ بیک ڈور انٹری ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ میں, بیک ڈور انٹری ہوئی ہے, یا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس کے لیے ہمارے پاس ڈیزگنیٹڈ ایجنسیز ہیں جو یہ چیزیں جو ہے انکوائر کرتی ہیں یا اس میں انویسٹیگیشن کرتی ہیں. وہ کچھ اگر کچھ کیسز ہیں تو وہ آلریڈی مجھے لگتا ہے وہ یا ACB دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو, یا کرائم برانچ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو. یہ کیسز تو سارے ڈپارٹمنٹس میں کہیں اگر ہوں تو وہ کیس ٹو کیس دیکھا جاتا ہے. RTI کے ذریعے ہم ڈیٹا مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ فلاں شخص فلاں جگہ پہ کام کر رہا ہے اور اس کا ہمیں DOB چاہیے, اس کا فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر چاہیے, اس کا تو یہ تو آپ دے سکتے ہیں. ہاں, اس میں اگر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ آن لائن ہے ڈیٹا, وہی کہہ رہا ہوں, ڈیٹا ٹرانسپیرنٹ ہے, تو کسی کی اپوائنٹمنٹ آن لائن ہو رہی ہے, کسی بھی کی اپوائنٹمنٹ کب ہوئے ہیں کیا ہوا ہے, تو آن لائن ڈیٹا ہے. آن لائن ڈیٹا تو اس میں دینے میں کیا حرج ہے؟ HRM میں تو سارا آن لائن ڈیٹا بالکل ہے, تو دینے میں کیا حرج ہے؟ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, کوئی دقت نہیں ہے. کوئی دقت نہیں ہے سر. چلیے سر, آپ سے ملاقات ہوئی ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ان سوالوں کا بھی جواب دیا ہے جو بڑے تیکھے طرح سے آپ نے جوابات دیے ہیں, اور لوگوں کو بھی وشواس رکھنا چاہیے اپنے ڈپارٹمنٹ, اپنے لوگ ہیں, اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا بھی حق ہے. تو اب آپ کی جو میسج ہے لوگوں کے لیے وہ کیا ہوگی سر؟ لوگوں سے میری ایک موضوعانہ گزارش ہوگی کہ یہ ڈپارٹمنٹ آپ کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے. ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے لوگ آپ ہی کے گھروں سے آتے ہیں, باہر سے تو کوئی بھی نہیں ہے. اسی سماج, اسی معاشرے سے ہم سارے ہی ڈپارٹمنٹس بنے ہیں. ریونیو ہے, پولیس ہے, PHE ہے, اریگیشن ہے, جو بھی ہیں. ہم جب کام کرتے ہیں تو اس میں کام کرتے ہوئے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو اس کی نشاندہی کریں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں. پانی کے جو ذرائع ہیں اور جو سورسز ہیں ان کی عزت کرنا سیکھیں تاکہ ہمارے جو مستقبل کے پانی کے مسائل ہیں وہ زیادہ ایگریویٹ نہ ہوں. تو یہی میری آپ سے گزارش رہے گی. باقی انشاءاللہ ہم دن رات محنت کر کے جو JJM کا پروگرام ہے اس کو ٹائم باؤنڈ طریقے سے پورا کریں گے, اور آپ کو جو ہے ایشورڈ واٹر کوالٹی اور ایشورڈ جو واٹر کوانٹٹی ہے وہ سپلائی کر کے ہی اس مشن کو جو ہے پائے تکمیل کو پہنچائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم سلیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ان کا جو پروگرام میں آنے کا ہم تہ دل سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پروگرام میں حصہ لیا ہے. تو اس سے پہلے ہم ان باتوں سے بالکل سہمت ہے کہ جو سلیم صاحب نے کہے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں سے کوئی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے, پبلک کی کوئی جینوین گریونس ہے سلیم صاحب سے, آپ بالکل بے جھجک کہیے, گریونس لاج کیجئے سر, یہاں پہ آپ کا گریونس ریڈس ہو جائے گا. اگر کوئی بھی شکایت ہو, پانی سے متعلق ہو یا سروس سے متعلق ہو یا امپلائیز سے متعلق ہو, ان سے آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. یا کوئی پانی میں آپ کا بادھا ڈال رہے ہیں, آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے, یا پڑوس کے لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, ایک گھر دوسرے گھر کو پانی نہیں دے رہا ہے, تو اس میں بھی نارمز اینڈ کرائیٹیریا ہے. آپ سلیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. پانی کسی کا پرسنل پراپرٹی نہیں ہے, تو پانی انٹرنیشنلائز کیا گیا ہے اور پانی ہر ایک کو ملنا ہے. یہ ان کا کام ہے, سلیم صاحب کا کام ہے کس طرح سے اور کن لوگوں کو پانی دینا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم, شکریہ.